Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Sequence AN, series AN, है ना? Discuss this. Alpha fix है. Whether it is convergent or not. Sequence AN. सीक्वेंस से पीछे नहीं छूटेगा. आपको लग रहा है कि सीक्वेंस हो गया ना? सीक्वेंस लाइफ लॉन्ग रहेगा. कब लाइन लगानी पड़े पता नहीं. सीक्वेंस लिमिट AN. इट इज कन्वर्जेंट. सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट. सोच के देखो. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये हमेशा इससे बड़ा होगा. साइन x इज लेस देन x, दिस साइन x इज लेस देन x, तो ये पॉजिटिव ही है ना, तो कोई इशू भी नहीं है. इट इज पॉजिटिव टू पावर अल्फा. वट एवर अल्फा, इवन इज फ्रैक्शनल हार्डली मैटर्स. 1 upon n minus sine 1 by n, this alpha is less than 1 by n to the power alpha or not? पक्का? If A is less than B and alpha is positive, A power alpha is less than B power alpha, और ये दोनों पॉजिटिव है, चाहे 1 से छोटे हो चाहे, हाँ, फर्क नहीं पड़ता इससे ना. यस, ये हमें पता है. A इज अल्फा, अगर पावर बड़ी है हमारी पॉजिटिव है जो भी, तो A स्क्वायर इज लेस देन A व्हेन A इज बिटवीन 0 and 1, है ना. बट सेम पावर की तो ठीक होगा ना वो तो, when powers are same, true. तो this is less than 1 by n, तो वो ठीक है, वो तो हो गया. and this is sandwich. this tends to what? 0. this is always 0, so this tends to what? 0. डन ना. कुछ भी गुणा भाग करने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नहीं तो वही 4-5 लोग को मारोगे आप लोग, पक्का मालूम है. हाँ जी. अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम उसकी सीरीज के बारे में उससे कुछ नहीं कह सकते. तब तक कुछ नहीं कह सकते. अगर कन्वर्जेंट है और नॉन जीरो है तो कह सकते हैं कि इट इज नॉट कन्वर्जेंट. समेशन एन इज नॉट कन्वर्जेंट. जैसे अगर मैं इसकी लिमिट नॉन जीरो आ जाती, दिस इज सीक्वेंस, देन वी टॉक अबाउट लिमिट ऑफ सीक्वेंस एन. ये तो हमारा फंडामेंटल सीक्वेंस वाला टॉपिक है ना. वेन एवर वी हैव एन वी कैन थिंक ऑफ व्हाट इज लिमिट एन. सिंपल सा मामला है कि भाई सीक्वेंस एन इज गिवन, so whether it is bounded or not, monotonic or not, convergent or not, if not then what are the limit superior, limit inferior, these all questions can be asked ever, है ना. तो वो तो चर्चा करोगे आप ना. once it is convergent and say limit L, limit n is L, if L is non-zero then what? if L is 0 then what? second step पे आ गए हम लोग, है ना. when limit a n is 0, sequence is called null sequence. There are two type of sequence, zero sequence and null sequence. Zero sequence मतलब which is identically zero. Vico turmeric. आ रही खुशबू, ठीक है. क्योंकि जुकाम के बाद भी आ रही है मेरे को, सीरियस बड़ी बात है, ठीक है. So limit an equal to 0, then we say sequence is null sequence, and it is also zero sequence. Zero sequence मतलब a n equal to 0 for all, a n equal to 0 for all n, then it is called zero sequence. But if its limit is 0, then we say it is null sequence. The difference is now, एक टर्म बना लिया हमने, what is null sequence, whose limit is 0. So whenever we have a sequence, we should think in these line: 1 bounded or not, if possibly you have answered; 2 monotonic or not; 3 if not monotonic complement subsequence; 4 convergence. With these discussion can I have idea of convergence? If yes, then it is yes or no. But the idea of convergence is there. Either I know it is convergent or I know it is not convergent, but I know whether it is convergent or not. If yes, then if it is convergent, then it is null sequence or not a null sequence. दो केस बनेंगे. If it is not convergent, then reason for failure for convergence, whether it is unbounded because of that
but it is bounded, so it has more than one limit point, that's why it is not convergent. तो ये सारी चीजें देखते ही सीक्वेंस को मिलना चाहिए. Whenever we have a sequence, हमें इन पे काम करना होगा, और ये हर 10 सेकंड पे एक कोई नया क्वेश्चन आएगा. You keep on changing. मैंने यहाँ 1/n किया, 1/n स्क्वायर, यहाँ साइन कॉस कॉट टेन, कुछ भी करना शुरू कर देते, e to the power 1/n, anything. Alpha is fixed. So for any alpha positive, this limit is what now? Here 0. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं. अब बनेगा समेशन an. Now what about summation an? To claim convergence or divergence of summation an, it is based over its SOPS. है ना? Either you should know whether SOPS is, again, the moment you have SOPS, वही bounded, monotonic, etc. If SOPS is convergent, summation an is convergent. But we have necessary condition for convergence as well. When summation an is convergent, limit an has to be 0. If limit an is non-zero, summation an is not convergent. So when we have a sequence an and summation an, first of all summation an, we go back to sequence an without SOPS. If find if limit is 0 or not. If its limit does not exist, yes, or if limit exists but not equal to 0. These two conditions, that answer, this is not convergent. When limit is 0, then we have to find. Further, next is whole करके, it is not sufficient. जैसे इसी केस में देखें हम 1/n minus sin 1/n power alpha. Look at here, an equal to 1/n minus इसकी जब 1/n minus 1/3 factorial 1/n cube n cube and so on. Alpha लिख सकते हैं ऐसे 1/n minus 1/n plus 1/3 factorial 1/n cube minus 1/5 factorial 1/n/5 and so on power alpha. 1/n to the power alpha बाहर आ गया. 1/n to the power, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, क्यूब है, 3 अल्फा बाहर आ गया. दिस इज कैंसिल आउट. नाउ अंदर क्या बचा? 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर एंड सो ऑन पावर अल्फा. दिस इज नाउ an. तो करना क्या चाहिए? व्हेन यू स्टार्ट अ क्वेश्चन, आइदर इट इज ऑफ सीरीज और सीक्वेंस, इन फर्स्ट 2-3 सेकेंड यू शुड कंफर्म एंड देन स्टार्ट. द क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज और ऑफ सीक्वेंस. ये मुझे मिला कि an was given like this, तो पहले ये गौर से देखा ये क्या है, ये क्या है, ये इसी पे फोकस करो. ये है क्या? हमको समझ में आ रहा है लिखा क्या हुआ है? 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. दिस शुड बी रैंडम थॉट इन योर माइंड. डेवलप सॉल्यूशन, डोंट क्रैम सॉल्यूशन. यहां पहुंचे, इसके बाद इसकी लिमिट निकाल देख लेते हैं क्या है. लिमिट an इक्वल टू 0 देख लिया. हाउ? बाय सैंडविच थ्योरम और व्हाटएवर द रीजन. एंड देन द क्वेश्चन इज अबाउट समेशन an. Let us see summation an. Since limit n is 0, we need to further investigate. If it is non-zero, मेरा आंसर यही आ चुका होता कि summation an is not convergent. If this limit does not exist, मेरा आंसर यही मिल चुका होता summation an is not convergent. But it is 0, so we need to investigate further. अब यहां करना शुरू किया, ये यहां पर ये आ गया. It is always positive, दिख रहा है तो n throughout. If I define bn equal to 1/n to the power 3 alpha, the limit an upon bn इक्वल टू 1/6. ये टर्म bn डिफाइन करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी लिमिट क्या आएगी? 1/6. बाकी सारा 0 हो जाएगा. दिस लिमिट इज व्हाट? 1/3 फैक्टोरियल. यही आएगा पहला टर्म, और कुछ तो नहीं बचेगा ना. तो क्या आया? 1/6 नॉट इक्वल टू 0. वी हैव कंपैरिजन टेस्ट इन द लिमिट फॉर्म. नाउ समेशन an and summation bn converge or diverge together. So when this summation an is convergent, when summation bn is convergent, when summation bn is convergent, when 3 alpha is greater than 1, when alpha is greater than 1/3. This is question from your NET exam. When this was given, the summation 1/n minus 1 sin 1/n to the power alpha is convergent if a alpha equal to 1, b alpha greater than 1 for
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। If and only if C for all alpha belongs to R plus D alpha greater than 1/3. और if and only if आता है summation AN and summation BN converge और diverge together. Converge और diverge together. अब ये summation BN कब converge करेगा? If and only if 3 alpha is greater than 1. तो ये if and only if आएगा नहीं आएगा? So when alpha is strictly greater than 1/3. ये आंसर होता अगर यहां पे if होता तो 1/3 से बड़ा होने पे कन्वर्ज कर जाता है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और पोस्टपोन करता हूं लैंग्वेज का कि उसने if and only if लिखा हुआ है कि ये होगा तभी कन्वर्ज करेगा। तो यहां पर तो if and only if क्या आया? अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1/3। अगर ये कहता केवल समेशन दिस इज कन्वर्जेंट इफ, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा दिस इज कन्वर्जेंट? मुझे निकल के आया कि अल्फा 1/3 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। 1/3 से बड़ा है, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, देन अगेन 1/3 से बड़ा तब भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। फॉर ऑल पॉसिबल एलिमेंट नो बिटवीन 0 and 1/3 इट विल नॉट बी, और इस पे भी हो जाएगा कंफर्म। तो अगर केवल इफ कहता तो आंसर ये होते, और इफ एंड ओनली इफ कहा उसने तो आंसर मेरा डी है। अगर समझ में आ रहा है कि व्हेन आंसर इज ए, बी एंड डी, एंड व्हेन आंसर इज ओनली डी। दिक्कत इसमें हाँ, अल्फा इक्वल टू 1 पे नहीं करेगा, 1/3 से बड़ा होने पे कर जाता है। 1/3 से परहैप्स बड़ा है। ठीक है, सो सिंपल टेस्ट अप्लाई किया। ये नेट में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे खूब क्वेश्चन मिलेंगे। दैट मीन समटाइम दे इंप्लाई कंस्ट्रेंट्स ओवर, है ना, कुछ अननोन डाल देते, उस पर पूछते उसकी क्या वैल्यू हो कि ये मेरा कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा मल्टीपल चॉइस। देन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच, ठीक है, दिस इज कन्वर्ज, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अल्फा फॉर विच इट इज कन्वर्जेंट। अल्फा क्वेश्चन दिया हुआ है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज कन्वर्जेंट। अल्फा इंटीजर बना सकते हो, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो यहां पर पहले लिमिट एन क्या आ रही है? कंफर्म 0 आ रही है। सबसे पहला काम तुम्हें कर लीजिए, लिमिट एन 0 आ रही है तो एन इज अ 0 नल सीक्वेंस। एन इज नल सीक्वेंस, कंफर्म ना, क्योंकि ये 1 पे जाएगा और ये 1 - 1 0, तो ये 0 पे जा रही है, तो आधा काम तो खत्म हो गया। इट इज अ नल सीक्वेंस। फॉर एनी समेशन एन टू बी कन्वर्जेंट, एन हैज टू बी नल सीक्वेंस, नॉट कन्वर्सली। जब भी समेशन एन कन्वर्ज करेगा तो लिमिट एन को 0 होना पड़ेगा। लिमिट एन 0 होने का मतलब ये नहीं है कि समेशन एन कन्वर्ज करेगा। समेशन 1/n एग्जांपल, समेशन sin 1/n एग्जांपल, समेशन 1/√n एग्जांपल, और समेशन 1/n टू पावर p एग्जांपल फॉर एनी p लेस देन 1 और इक्वल टू 1। बट अगर समेशन एन कन्वर्ज कर रहा है तो लिमिट एन को 0 होना पड़ेगा। तो इतना तो कम से कम चेक कर लेते हैं। अगर मैं वहां से 1 माइनस कर देता, बजाय इसके लिखने के केवल ये लिखता, तो लिमिट एन तो तब भी आ जाती है मेरी,
हाँ वन, है ना, लिमिट एन तब भी आ जाती, लेकिन समेशन एन मेरी कन्वर्ज नहीं करती। लिमिट एन तो 0 होना चाहिए। इसकी लिमिट क्या, तो व्हाट शुड बी अल्फा फॉर दिस इज, व्हाट शुड बी अल्फा ग्रेटर देन 1 बाई, पक्का। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, बाहर आया, इसको आपने सीरीज को 1 माइनस कॉस 1, इसके लिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/n टू द पावर 4 पहला टर्म, प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/n टू द पावर 8, ऐसे होगा। ये पावर ई अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, 1/n टू पावर 4 बाहर आएगा, तो 1/n टू द पावर 4 और ई अल्फा, 4e अल्फा, है ना। तो पहली बार में आंसर करेक्ट लाया करो भाई, ये 1/2 है ना। ये मेरा an है, मैं क्या बाहर कर दूं, मतलब क्या bn, डिसाइड यही से होता है bn की लिमिट फाइंड आ जाए। अगर ये हिस्सा बाहर कर देता हूं मैं, ये हिस्सा बाहर कर दूं, तो bn क्या बनना चाहिए मेरा, bn इक्वल टू 1/n टू पावर 4e अल्फा, एंड देन an अपॉन bn, दिस लिमिट विल बी 1/2, ये बचेगा केवल, हाँ 2 रेज़ टू पावर e अल्फा, नॉन जीरो फिर भी, है ना। तो दोनों का बिहेवियर सेम होना चाहिए। अब समेशन bn कब कन्वर्ट करेगा, जब 4e अल्फा मेरा ग्रेटर देन 1 हो, यानी अल्फा मेरा ग्रेटर होना चाहिए 1/4e से, है ना, 4e से। अगर अल्फा मेरा 1 हो जाए, ये नंबर मेरा क्या है, बहुत छोटा है 1 से, है ना, नंबर 1 से बहुत छोटा है, ये ऑलमोस्ट ये E 2.7, ढाई भी मान लू ना ई को, तो इसको कम करूंगा तो ये नंबर क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा। तो जो 1/8 है 1/4e से बड़ा है ना, 1/8 1/4e से बड़ा है कि नहीं है। अगर अल्फा 1/8 से बड़ा होगा तो 1/4e से भी बड़ा होगा, तो 1/8 पे काम कर जाएगा ये, है ना, क्लियर। देन इट इज ट्रू ऑलवेज फॉर एनी इंटीजर अल्फा, नेचुरल नंबर अल्फा, अल्फा कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। अब 4 ऑप्शन ऐसे बन सकता है कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ अल्फा इज अ नेचुरल नंबर, एक ऑप्शन ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा, अल्फा अगर कोई नेचुरल नंबर होगा तो ऑब्वियसली 1/4e से बड़ा है। हाँ, अगर ये अल्फा वाई ई होता, अल्फा अपॉन यहां ऊपर, यहां अल्फा अपॉन ई या ई अपॉन अल्फा होता, तो उसके अकॉर्डिंग यहां भी आता वही 4 टाइम ई अपॉन अल्फा, दैट शुड बी, है ना। अगर यहां पे ऐसे 4 टाइम ई बाई अल्फा अगर होता, दिस शुड बी लेस देन 1, अल्फा क्या आता, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 4 इंटू ई, ओ उल्टा, शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस शुड बी लेस देन, उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, अल्फा शुड बी लेस देन 4 इंटू ई, ई बाई अल्फा, अल्फा डिनोमिनेटर चला गया ना, अल्फा अपॉन ई करते तो वो उधर आता। तो ऐसा करने के बाद पूछता कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर, अगर यहां पर ये पूरा ठीक है कि अल्फा किन 2 इंटीजर को क्रॉस करे मिनिमम की, तो यहां पर मैक्सिमम क्या हो सकता है 8 से, है ना, 4 पॉइंट ई, 8 तो 4 इंटू ई से लेस है ना, तो 8 पे कन्वर्ट कर जाएगा नहीं कर जाएगा, एट 4 इंटू ई से छोटा है भाई। अगर अल्फा 8 से छोटा होगा तो 4e से भी छोटा होगा, और वही चाहिए हमको, ऐसे मत करो। इस वाले केस में जैसा भी केस हो, 9 भी 10 भी, अच्छा 2.7 है ना, हम 2 से क्यों टिके हुए हैं, 2.7 है, बहुत है, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10, 10.8 तो वही हो गया 10.8, 10.8 से तो बड़ा ही है 4 इंटू ई, क्योंकि आगे डिजिट और भी है ना, तो 10.8 से तो बड़ा है ही।
Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. ठीक है, तो सीलिंग आएगी 11 और फ्लोर आएगा 10। सीलिंग आएगी 11। तो अगर वो गेट में पूछता ना तो वो ऐसे ही पूछता वो, ठीक है। देन फॉर द अल्फा फॉर वेट इज कन्वर्जेंट, तो ये जो दिस, ठीक है, लार्जेस्ट इफ के, देन लार्जेस्ट के इक्वल टू व्हाट, पूछ सकते हो बड़े आराम से इसमें, लार्जेस्ट के और स्मॉल, है ना, लार्जेस्ट के या स्मॉलेस्ट के कुछ पूछता, तो वो इस वाले केस में तो ठीक है। ई वाई इसमें क्या आता, 1 क्या आया है, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन, तो वो 1 पे भी काम कर जाएगा, अगर ये पावर 1 आई तब भी कार्य कर जाएगा काम, ठीक है। यानी अल्फा क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा उस केस में। चलिए हम लोग, पर ये क्वेश्चन तो सेट कभी खत्म होने वाले नहीं है। लिखिए नेक्स्ट। सो वी हैव डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, वी हैव लिमिट फॉर्म, एंड थर्ड वी हैव कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ने हमको पी टेस्ट दिया, कंडेंसेशन ने हमको पी टेस्ट दिया कि an अपॉन bn, और इससे एक चीज और दे सकते हैं कि n टू द पावर p इंटू an, ये बना लें। इफ दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू l नॉन जीरो, देन इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट, और इफ p इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 वी डोंट नो, अभी यहां तक तो ठीक है ना। ये तो किया आपने, व्हाट इज bn, 1/n पावर p, उससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। अब समेशन an एंड समेशन bn विल कन्वर्ज टुगेदर, समेशन bn इज व्हाट, 1/n पावर p, ये पहुंचेगा यहां पर ना। जैसे एग्जांपल लिखे an इक्वल टू n प्लस 1 टू द पावर दिस 4 माइनस n टू द पावर 1/4, करो डिस्कस, मतलब ये डिस्कस दिस, n प्लस 1, it is convergent, limit an, sequence an is convergent or not, sequence an is convergent, पक्का sequence an is convergent है ना, sequence an is convergent, limit an is 0, null sequence। अब आगे बढ़ने की बारी है, समेशन an के बारे में बात करें तो, सो लिमिट an is 0, और अब समेशन an की बारी है। थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ता है, इसमें क्या आएगा बाहर, यहां से n प्लस 1 टू द पावर 1/4 माइनस n टू द पावर 1/4, ये लिखा हुआ है an, मैंने n बाहर लिया, यहां से n टू द पावर 1/4 बाहर आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 1/4 माइनस 1, और ऐसे बन गया, ये लिख सकते हैं ऐसे हम, बाइनोमियल 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू n, और जो भी आएगा 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 इंटू 1 n स्क्वायर, है ना, और 2 फैक्टोरियल भी आएगा ना, n, और एंड सो ऑन माइनस 1, ये कैंसिल, n और बाहर लो, यहां से n बाहर और ले सकते हैं हम लोग, तो यहां क्या बचेगा इस तरफ, दिस an इक्वल टू 1 अपॉन, ऊपर 1/4 नीचे 1, 1 माइनस 1/4 n टू द पावर 3/4, और ब्रैकेट में 1/4 और प्लस जो भी 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 इंटू 1/n एंड सो ऑन, ये मेरा बन गया an। तो सिंप्लीफाई कर लो उसको। अब आपको पता है bn क्या मिल जाए कि लिमिट फाइनाइट हो जाएगी, ये यही चूज कर ले bn हम, या तो वो वाला मामला कि n टू द पावर 3/4 इंटू an, अगर ये लेके चलता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, p मुझे वही ना, ये वाला, व्हाट इज p नाउ,
या इस फॉर्म में करें या फिर वही सीधे बी एन इक्वल टू 1/n टू द पावर 3/4. सो ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 एन इंटू ms1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. एन इंटू ms1 है ना, ऐसे लिखते हैं ना उसको. हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये मेरा क्या होता चला गया सारा जीरो, अकेला ये बचा. तो लिमिट इज so not equal to 0. So summation an and summation bn, because they behave alike and summation bn is divergent less than 1. So summation an is divergent. Summation an is divergent. Okay. Summation an is divergent. ठीक है ना, ये यहां पर नाउ स्पेशल कंपैरिजन लगाइए. नोट ऑफ if limit an upon bn is 0, an positive, bn positive, then if summation bn is convergent implies summation an is convergent, and if summation an is divergent implies summation bn is. अगर 0 आ जाए लिमिट ना, तब भी आपके पास रिजल्ट है. नॉन जीरो बिहेवियर सेम हो जाता है, जीरो बिहेवियर सेम नहीं होता. जीरो पे बिहेवियर सेम नहीं होगा, जीरो पे ये रिजल्ट आएगा. अब पता है क्यों? बताओ, लॉजिक दो. है ना, क्योंकि लिमिट मेरी क्या है नाउ, एज लिमिट an upon bn equal to 0 implies for any epsilon bracket में equal to 1 ले तब भी there is m a natural number such that mod an upon bn minus 0 is less than which is 1 for all n get equal to m. This means an upon bn is less than 1 for all n get equal to m, because ये दोनों पॉजिटिव है तो mod हटा देते हैं. This implies what? an is less than bn for all n get equal to m. Now apply direct comparison. Now apply direct comparison. क्या बड़ा कन्वर्ज करेगा छोटा भी कन्वर्ज कर जाएगा, और छोटा डाइवर्ज करेगा तो बड़ा डाइवर्ज कर जाएगा. ठीक है. तो तीनों टेस्ट मेरे पास आ गए. डायरेक्ट कंपैरिजन, लिमिट फॉर्म, कंडेंसेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पी टेस्ट, पी सीरीज. पी सीरीज जो है ना, पी टेस्ट, कि समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टू द पावर पी इंटू ए एन इज नॉन जीरो एंड पी इज ग्रेटर देन 1. ये टेस्ट आपका बन गया कि समेशन ए एन वेयर ए एन इज पॉजिटिव if limit n to the power p a n is non-zero equal to L non-zero and p1 implies summation a n is convergent. ये p टेस्ट समझ सकते हो उसको ऐसे. ये फॉर्म भी है, आपने देखा होगा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसमें हर जगह ऐसे बना दिए गए हैं कि x माइनस a टू द पावर म्यू एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a दिस एग्जिस्ट नॉन जीरो इफ म्यू इज मोर देन 1 इंटीग्रल कन्वर्जेंट, जबकि है वो कंपैरिजन टेस्ट ही. ठीक है, बट ऐसे लिखा जाता है वहां पर. ये चीज यहां पर भी है, इस फॉर्म में आपने नहीं देखा होगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है यहां पर. तो अगर वो एग्जाम में ये बना के दे रहा है तो इट इज एज गुड एज वी आर कंपेयरिंग विथ 1/n टू द पावर p. एग्जैक्टली वही है ये. ठीक है, ये हो गया पी टेस्ट आपका इस फॉर्म में. क्लियर है कि नहीं है?
कि 1 अपॉन एन टू द पावर पी को मान लिया bn, तो an अपॉन bn क्या आ गया, n टू द पावर p इंटू an। अब ये लिमिट इस करेगी तो ये स्टैंडर्ड बन गया हमारे इसी फॉर्मेट के लिए, ठीक है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.